Good morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is campers. What is the meaning of this word? Campers means people or persons who stay in tents or who are camping somewhere for recreation or fun. So that was about our password. Now what we are going to do today children? We will revise chapter number 8, that is houses we live in, through a worksheet. I have framed a worksheet regarding some extra objective type questions. So we will be revising through that worksheet. So let us start. So children, as you know that we have done book work and notebook work of chapter number 8, houses we live in. So we have discussed in detail about the need of houses and the different types of houses as well. So हमने डिटेल में डिस्कस किया है. Now we will revise this chapter, that is chapter number 8, houses we live in, through a worksheet. So children, this is the worksheet for chapter number 8 that I have framed for revision of this chapter. So children, this is question number A. Circle the correct answer. So we have to circle the correct answers. We are given two options in which one is right and other is wrong. So we will circle the correct answer. So at number 1, we need a park/house to live in. हमें रहने को पार्क चाहिए या हाउस चाहिए. So we all need a house to live in. हमें रहने को हाउस चाहिए. So we will circle this word house as the correct answer. We need a house to live in. At number 2, we feel safe/unsafe inside our house. हमें कैसा महसूस होता है हमारे घर के अंदर. Inside means अंदर, safe सुरक्षित, unsafe means असुरक्षित. So as we know कि we feel safe when we are inside our home. हमें अपने घर में comfortable और safe feel होता है. So this option is correct. Safe is to be circled. We feel safe inside our house. So this is the correct sentence. At number 3, a hut is an example of पक्का/कच्चा house. Hut किस हाउस का एग्जाम्पल है, पक्का हाउस का या कच्चा हाउस का. सो एज वी नो कि हट किससे बना होता है, मड, स्ट्रॉ और जो लीव्स है इन्हीं सब चीज़ों से बना होता है, तो उसे कच्चा हाउस कहा जाता है. सो अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. दिस वर्ड इज़ करेक्ट. सो अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. दिस इज़ द सेंटेंस. एट नंबर 4, डैश players/nomads live in houses on wheels called wheel caravans. कौन रहते हैं जो कि ऐसे हाउस पर जो व्हील पर टिका हुआ होता है, व्हील कैरवन्स जिसे बोलते हैं. कौन लोग रहते हैं उसमें, प्लेयर्स रहते हैं या नोमैड्स रहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ नोमैड्स. नोमैड्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं. कुछ नोमैड्स ऐसे होते हैं जो कार्ट पर इधर उधर मूव करते हैं, कुछ पैदल ही मूव करते हैं, ऑन फुट मूव करते हैं. कुछ नोमैड्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्सपीडिशन या ट्रेड के लिए किसी मिशन के लिए जाते हैं, तो वो भी ऐसे हाउसेस में ही रहते हैं. सो नोमैड्स लिव इन हाउसेस ऑन व्हील्स. नोमैड्स उन हाउसेस में रहते हैं जिसे व्हील कैरवैन कहते हैं. एट नंबर 5, एन इग्लू इज़ मेड अप ऑफ वुड/आइस. इग्लू किससे बनता है, वुड से, लकड़ी से या आइस से. सो द करेक्ट आंसर इज आइस. An igloo is made up of ice. At number 6, a stilt house stands on a set of wooden/iron post. एक stilt house है, वो टिका होता है किस पर, किस चीज़ के सेट पर टिका होता है, वुडन लकड़ी के या आयरन लोहे के पोस्ट पर. पोस्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे पिलर्स हो सकते हैं. सो एक स्टिल्ट हाउस वुडन पोस्ट पर टिका होता है क्योंकि वो खुद ही वुड का होता है. सो वो वुड से बना होता है. वो उन एरियाज़ में बनाया जाता है वेयर जो कि फ्लड प्रोन एरियाज़ होते हैं, जहाँ यूजुअली फ्लड आती रहती है. सो अ स्टिल्ट हाउस स्टैंड्स ऑन अ सेट ऑफ वुडन पोस्ट. वुडन पोस्ट पर वो टिका होता है. एट नंबर 7, अ ट्री हाउस इज़ मूवेबल/नॉन मूवेबल. सो एक ट्री हाउस क्या हो सकता है चिल्ड्रन, मूवेबल हो सकता है या नॉन मूवेबल. ट्री क्या होता है, फिक्स्ड होता है, सॉइल में वो फिक्स्ड होता है, सो वो मूवेबल नहीं हो सकता. सो अ ट्री हाउस इज नॉन मूवेबल. दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सेंटेंस. एट नंबर 8, वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन/डर्टी. हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए या डर्टी. सो वी
have to and we should keep our house clean. This is the correct option. At number 9, a dash houseboat / tent can be easily folded. ऐसा हाउस जिसे फोल्ड किया जा सकता है, हाउस बोट या टेंट. हाउस बोट को हम फोल्ड कर सकते हैं? नो. सो टेंट है वो कैनवस का बना होता है, उसे ईजिली फोल्ड किया जा सकता है और कैरी भी किया जा सकता है. सो अ टेंट कैन बी ईजिली फोल्डेड. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. Our next question is question number B, MCQs. MCQs means multiple choice questions. So first is, which one of the following house is a special house? इनमें से कौन सा हाउस एक स्पेशल हाउस है? ऑप्शंस आर हाउस बोट, टेंट, स्टिल्ट हाउस. सो इनमें से स्पेशल हाउसेज एज वी हैव डिस्कस्ड एंड रीड इन अवर चैप्टर नंबर 8. सो स्पेशल हाउस की कैटेगरी में क्या हाउस था? स्टिल्ट हाउस. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. वी विल टेक दिस ऑप्शन. So children, at number 2, in places where it rains a lot, houses have. ऐसी जगह पर जहाँ बहुत बारिश होती है, a lot means बहुत ज़्यादा बारिश होती है. Houses have. Houses के क्या होता है? Options are A slanting roof, B flat roof, C curved roof. Slanting roof क्या होती है children? जो कि थोड़ी tilted होती है, कि that we have already discussed in detail in our chapter. कि slanting roof क्या होती है, कि वो हेल्प करती है रेन्स एंड स्नो को स्लाइड डाउन करने के लिए. फ्लैट रूफ क्या होती है? बिल्कुल फ्लैट होती है ऊपर से. एंड कर्व रूफ क्या होती है? थोड़ी सी राउंड में होती है ऊपर से. दिस इज़ द कर्व, आप देख सकते हैं. सो ऐसी प्लेसेस पर जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, हाउसेज हैव स्लैंटिंग रूफ, ताकि जो रेन है और स्नो है वो फॉल डाउन हो जाए रूफ से और हाउस को कोई नुकसान ना हो. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एट नंबर 3, टेंट्स आर वेरी डैश टू पुटअप. टेंट्स को क्या है पुटअप करना? ऑप्शंस आर ईजी, डिफ़िकल्ट या हैवी. ईजी होता है पुटअप करना, मीन्स उसे खोलकर उसे लगाना ग्राउंड पर. या डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल. हैवी मतलब बहुत भारी. नो, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. टेंट्स आर वेरी ईजी टू पुटअप. टेंट्स बहुत ईजी होते हैं पुटअप करने के लिए, उनको इंस्टॉल करने के लिए. एट नंबर 4, ड्यूरिंग कैंपिंग विच टाइप ऑफ हाउस कैन बी यूज फॉर स्टेइंग. कैंपिंग के दौरान कौन सा हाउस यूज़ होता है स्टे करने के लिए? कि जो कैंपिंग के लिए जाते हैं या माउंटेनियर्स जाते हैं माउंटेन्स पर, तो वो उनका जो एक्सपीडिशन होता है या उनका जो मिशन होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है. तो वो स्टे भी करते हैं. तो वो स्टे किस में करते हैं? ऑप्शंस आर टेंट, हाउस बोट, इग्लू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेंट. वो टेंट्स ले जाते हैं, उसे फोल्ड करके कैरी करते हैं और जब उन्हें इंस्टॉल करना होता है, स्टे करना होता है, उसे खोलकर पुटअप कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर से पैक कर देते हैं. हाउस बोट क्या होता है? जो हाउस जो कि बोट पर होता है. और इग्लू क्या होता है? स्नो हाउस. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. एट नंबर 5, हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसे हाउसेज जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. ऑप्शंस आर टेम्परेरी, परमानेंट, नन ऑफ द अबव. सो ऐसे हाउसेज क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेम्परेरी. टेम्परेरी हाउसेज वो होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. सो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द टेम्परेरी हाउसेज, दैट इज हाउस बोट, व्हील कैरवान. तो ये इस तरह के हाउसेज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं. सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग. सो हमें मैच करना है चिल्ड्रन. वी हैव बीन गिवन 2 कॉलम्स. वी हैव टू मैच द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द 2 कॉलम्स. दोनों कॉलम्स में जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें मैच करना है. वी विल रीड द वर्ड्स दैट आर गिवन इन दिस कॉलम. फर्स्ट, इग्लू, स्टिल्ट हाउस, टेंट, हट, हाउस बोट, व्हील कैरवैन्स. So now we will read this column's words: canvas, snow, floating house, wooden posts, house on wheels, mud, straw, etc. So first is igloo. Igloo we will match with snow, as you know that igloo is made up of snow. Next is stilt house. Stilt house को किससे मैच करेंगे? wooden post पे, because it stands on wooden posts. Next is tent. Tent किससे बना होता है? tent is made up of canvas cloth. एट नंबर 4, हट. हट किससे बने होते हैं चिल्ड्रन? मड, स्ट्रॉ, एट्सेट्रा. इनसे हट बनता है. सो वी विल मैच हट विथ दिस ऑप्शन. नेक्स्ट इज हाउस बोट. वी विल मैच हाउस बोट विथ फ्लोटिंग हाउस, बिकॉज अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस.
लास्ट इज व्हील कैरवेंस. व्हील कैरवेंस हैं दो. व्हील कैरवेंस आर हाउसेस ऑन व्हील्स. सो वी विल मैच व्हील कैरवेंस विथ option E, that is house on wheels. So that's all for our EVS revision worksheet. Now I am telling you about the diagrams. As you know that in your PT2 or half yearly your one question is for diagrams. आपका एक क्वेश्चन होगा diagrams के लिए. So we will discuss the diagrams. So children, as you know that today is Wednesday. So Wednesday is the homework giving day for EVS subject. So you have two homeworks for this week. The first is draw any one type of house and label it too. You have to draw any one type of house. आपको किसी भी एक तरह का हाउस टाइप का हाउस ड्रॉ करना है और उसे लेबल करना है. लेबल करना मीन्स उसका नेम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्रॉइंग एन इग्लू, आप एक इग्लू ड्रॉ कर रहे हैं तो आप उसे उसका लेबल करेंगे, मीन्स वहाँ इग्लू लिखेंगे. एंड इफ यू आर ड्रॉइंग हाउस बोट या टेंट तो आप उसका लेबल करेंगे हाउस बोट या टेंट लिखेंगे. सो इट हैज़ टू बी ड्रॉन इन योर नोटबुक. इसे आप नोटबुक में करेंगे. सो एज यू नो दैट डायग्राम विल बी देयर इन योर PT2 एग्जाम. सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर द डायग्राम. द नेक्स्ट होमवर्क इज लर्न क्वेश्चन आंसर नंबर 1 and 2 ऑफ चैप्टर 6 फूड वी ईट. सो इट्स टेस्ट इज ऑन 1st September. You have to learn question answer number 1 और 2. आपको question answer number 1 और 2 learn करना है chapter 6 का from your notebook. So its test is scheduled on 1st September 2020. So that's all for your EVS class. We will meet in our next EVS class. Till then children, bye bye, take care.